تفسیر دیکھیں گے، ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں۔ رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کا بدلہ ہے، جنت میں دو باغ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے کا ڈر دراصل کیا ہے؟ کل ہوگا یا آج؟ اجر کل ہوگا اور یہ کام آج ہونے والا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے کھڑا کر کے دیکھے کہ میرا رب میرے سے اس عمل کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ یہ کام کیوں کیا تھا، اور انسان اس خوف کے تحت وہ کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس نے نواہی کو ترک کر دیا، اور جس کام کا اسے حکم دیا گیا اس کام کو اس نے کر لیا۔ دو جنتیں ہیں جن کے برتن، زیورات، عمارتیں اور ان میں موجود تمام چیزیں سونے کی ہوں گی۔ ایک جنت ان کو جزا کے طور پر دی جائے گی کہ انہوں نے اللہ کے روکے کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور دوسری نیکیوں کی جزا ہوگی۔ عبداللہ ابن قیس ابو موسیٰ اشعری نے روایت کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا جنت میں دو باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور دو دوسرے باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی، اور جنت عدن سے جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے منہ پر ہوگی حائل نہیں ہوگی۔ یہ بخاری کی 4878 نمبر روایت۔ تو ایک جنت عدن، دوسری جنت نعیم، یا ایک بلند اور دوسرا پائیں باغ، یا ایک روحانی اور دوسرا جسمانی باغ، یا ایک مردانہ اور دوسرا زنانہ باغ، ایک اطاعت کے بدلے میں دوسرا ترک معصیت کے بدلے میں، یا ایک باغ صحت عقیدہ کے بدلے میں دوسرا نیک عمل کے بدلے میں۔ دو باغوں کے مفسرین نے یہ سب معنی بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ امام شوکانی کی روایت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے والوں کے لیے تیار کیے گئے باغات کو اپنی نعمت قرار دے کر سوال کیا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان، دونوں ہی بہت شاخوں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والے کے جنت کے باغات کیسے ہوں گے؟ ذواتا افنان، افنان بہت بڑا اور لمبا ٹہنا، یعنی ان دو باغوں کے جتنے درخت ہوں گے ان سب کے دو بڑے بڑے ٹہنے ہوں گے، پھر ان ٹہنوں کی چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں نکلیں گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے کہ ان باغوں کے درختوں کی نشو و نما میں ایک دوسرے سے پوری یکسانیت اور ہم آہنگی ہوگی۔ افنان لمبی شاخ کو کہتے ہیں، اور یہ حقیقی معنی ہے، یہ کنایہ سے ہر قسم کی نعمتوں پر مشتمل ہونا مراد ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی شاخوں والے، بہت گھنے سائے والے، بہت پھلوں والے باغات کی نعمت کو جھٹلانے کی بات کی ہے۔ فیہما عینان تجریان، ان دونوں میں دو چشمے بہہ رہے ہیں۔ جنتوں کے اندر دو چشمے جاری ہوں گے، ایک کا نام تسنیم اور دوسرے کا سلسبیل، یہ کبھی خشک نہیں ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کثرت سے
रवां पानी के बारे में फरमाया है कि 2 चश्मे होंगे जो बहुत पानी लिए हुए होंगे, तस्नीम और सलसबील। फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतिन ज़ौजान, दोनों में हर फल की 2-2 किस्में। दोनों बागों में 2 किस्मों वाले फल होंगे, हर एक का अपना रंग, अपनी लज्जत, अपना मजा, अपनी खुशबू होगी, जिनको न किसी आंख ने देखा न किसी कान ने सुना। फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। रब्बुल इज़्ज़त ने फलों और जायकों के तज़किरे के बाद सवाल किया है, ये बताओ कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। मुत्तकीईन अला फुरुशिम बताइनुहा मिन इस्तबरकिन वजनल जन्नतैनि दान, 2 मसनदों पर तकिया लगाए होंगे जिनके अस्तर मोटे रेशम के होंगे, और दोनों बागों के तरोताजा फल बिल्कुल ही करीब होंगे। अहले जन्नत अपने बागों में किस हाल में होंगे? रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उनके बिछोने और बिछोनों पर बैठने का वसफ कैसा होगा। तकिए लेकर बिछोनों पर बैठेंगे, यानी करार और राहत से बैठेंगे, जैसे बादशाह तख्तों पर बैठते हैं। इन बिछोनों का वसफ और हुस्न अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। हत्ता कि उनके नीचे वाले हिस्से जो जमीन के साथ लगे हुए होते हैं इस तबरक के होंगे, जो रेशम की खूबसूरत तरीन और आला तरीन किस्म है। तब इन बिछोनों के ज़ाहिरी हिस्से जिन पर बैठा जाता है उनकी खूबसूरती कैसी होगी। वजनल जन्नतैनि दान, और दोनों बागों के तरोताजा फल बिल्कुल ही करीब होंगे, इतने झुके होंगे जब चाहें जो चाहें पके हुए फल तोड़ लें। जन्नत के फलों के बारे में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुतूफुहा दानिया, जिसके फल करीब होंगे। फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो है जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नतियों के फर्श की नेमत और फलों के करीब होने की नेमत का एहसास दिलाकर सवाल किया है कि अपने रब के किस इनामो इकराम को झुटलाओगे। फीहिन्ना कासिरातुत तरफी लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, उनमें नीची निगाह वाली औरतें होंगी जिन्हें उनसे पहले किसी इंसान या जिन ने छुआ तक नहीं। जन्नत के बागों में जन्नतियों की बीवियां कैसी होंगी, औसाफ जिक्र किए गए। फीहिन्ना कासिरातुत तरफी, उनमें नीची निगाह वाली औरतें होंगी, उनकी निगाहें अपने हुस्नो जमाल और अपने शौहरों के साथ कमाल दर्जे की मोहब्बत पर लगी होंगी, और उनके शौहरों की निगाहें भी उनके हुस्नो जमाल, उनके वसल की लज्जत और उनके साथ शदीद मोहब्बत की बिना पर सिर्फ उन्हीं पर जमी हुई होंगी। लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, जिन्हें उनसे पहले किसी इंसान या जिन ने छुआ तक नहीं। ये 2 शीज़ाएं बिल्कुल अछूती होंगी, इनके शौहरों से पहले इनको किसी इंसान या जिन ने छुआ तक नहीं होगा। हम उम्र और दिल रुबा होंगी। फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। यहाँ जन्नती औरत की पाकीज़गी की नेमत का जिक्र किया गया। अल्लाह ताला ने सवाल किया, आखिर किस किस नेमत को झुटलाओगे। कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, गोया कि वो औरतें याकूत और मिर्जान जैसा हुस्न रखती हैं। जन्नती औरत का हुस्न, सफाई और पाकीज़गी याकूत की तरह होगी। वो गोरेपन में, सफेदी में मोती की तरह होगी। सईद अबू हुरैरा से रिवायत है कि अबुल कासिम रहिमहुल्लाह ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वाली पहली जमात 14वीं रात के चांद की तरह होगी।
اور इसके बाद आने वाली जमात आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाले सितारे की तरह, उनमें से हर एक को अल्लाह ताला दो दो बीवियां अता फरमाएगा। उनकी पिंडलियों का गूदा गोश्त के ऊपर से नजर आ रहा होगा, और जन्नत में कोई शख्स भी बीवी के बगैर नहीं होगा। मुस्लिम की 2834 नंबर रिवायत। सईद अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अहले जन्नत में से कोई औरत यानी हूर जमीन वालों की तरफ झांक ले तो वो तमाम फिजा को जो जमीन व आसमान के दरमियान है रोशन कर दे और उसको खुशबू से भर दे, और बेशक उसका दुपट्टा जो उसके सर पर है तमाम दुनिया वालों और जो कुछ उसमें है उससे बेहतर है। बुखारी की 2796 नंबर रिवायत। फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो है जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने जन्नती औरत के हुस्न का तज़किरा करके सवाल किया है कि ये बताओ कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, नेकी का बदला नेकी ही है, मुखलिसों के सिले की वजाहत है। नेकी का बदला यानी ईमान, इताअत और इबादत की जजा। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, नेकी का बदला नेकी ही है, यानी जिसने दुनिया में खुलूस से अमल किया उसका बदला आला दर्जे की जन्नत है। तो क्या उस शख्स की जजा जिसने बेहतरीन तरीके से अपने रब की इबादत की और उसके बंदों को फायदा पहुंचाया, इसके सिवा कुछ और हो सकती है? कसीर सवाब, नेमतें और तकलीफ से पाक जिंदगी अता करके उसके साथ हुस्न सलूक किया जाए, ये दो बुलंद मर्तबा जन्नतें मुकर्रबीन के लिए हैं। फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो है जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। नेकी के बदले को यानी जन्नत की किस किस नेमत को झुटलाओगे। वमिन दूनिहिमा जन्नतान, और उन दो के अलावा भी और दो बाग हैं। अरबी जुबान में दूना का लफ्ज अगरचे माँ सिवा और अलावा के मानी में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल एक के मुकाबले में दूसरी चीज या बलिहाज़े मर्तबा कम होने के मानों में आता है। इसलिए ऐसा पता चलता है कि ये पहले दो बागों से मुकाबले में कम मर्तबा होंगे। एक हदीस में कि दो जन्नतें सोने की और चांदी की होंगी। शायद पहली जन्नतें मुकर्रब लोगों के लिए हैं और दूसरी अस्हाबुल यमीन के लिए, वल्लाहु आलम। फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे। दो बाग, अजीम नेमत जिसका यकीन दिल के अंदर नहीं बैठ रहा, ये बताओ कब तक झुटलाओगे। मुदहामतान, दोनों स्याही माइल गहरे सब्ज हैं। इन दोनों बागों के पत्ते अपनी सैराबी की वजह से इतने गहरे सब्ज होंगे कि स्याह हो रहे होंगे। फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। यानी जन्नत के दो दूसरे बागों की सरसब्जी और शादाबी जैसी नेमत को कब तक झुटलाओगे। फीहिमा ऐनानी नज़्ज़ाख़तान, उन दोनों में जोश मारते हुए दो चश्मे हैं। नज़्ज़ाख़ुन के मानी है पानी का चश्मा जोर से फूटना। तो जोश मारने की वजह कसरत आब भी है और दबाव भी, न कि हरारत। और नज़्ज़ाख़ुन मूसलाधार बारिश को भी कहते हैं। इस आयत का मफहूम यह है कि चश्मों के सुराख तंग और पानी की कसरत, रवानी की तेजी की वजह से वो चश्मे जोश मार रहे होंगे। तो उन जन्नतों में उबलते हुए चश्मे यानी फव्वारे होंगे। मुजाहिद रहिमहुल्लाह कहते हैं खैर व बरकत से जोश मार रहे होंगे। फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो है जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे।
जोश से उबलने वाले पानी की नेमत का तज़किरा है कि ये बताओ किस किस नेमत को झुटलाओगे। फीहिमा फाकिहतुम व नखलुम व रुम्मान, उन दोनों में फल और खजूरों के दरख्त और अनार हैं। बात है फाकिहा की, और फकिहा कहते हैं खुश तबई को, खुश मिजाजी को, हंसने हंसाने वाला होना। और फकिहा कहते हैं किसी को मेवा खिलाना और अपने शीरीं कलाम से किसी को खुश करना। और फवाके से मुराद ऐसे फल हैं जिनके खाने का असल मकसद लज्जत और सुरूर हो, लुत्फ हासिल करना हो, ना कि ग़िज़ाइयत हासिल करना। और खजूर के साथ अनार का पानी मिल जाए तो खाना पीना और लुत्फ व सुरूर सब हासिल हो जाता है। फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो है जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने यहाँ खजूर, अनार और दूसरे फलों की नेमत का जिक्र किया है कि तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। फीहिन्ना खैरातुन हिसान, उनमें कई खूबसूरत औरतें हैं। उन दो बागों में रहने वाली औरतें कैसी होंगी? जन्नत में बेहतरीन अखलाक और खूबसूरत चेहरों वाली औरतें होंगी। ज़ाहिरी हुस्न भी, बातनी हुस्न भी, उनका हुस्न खुल्क और हुस्न तख्लीक अपने कमाल पर होगा, यानी जैसे उन्हें बनाया गया। सैयदना मुआज़ बिन जबल कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई औरत अपने शौहर को तकलीफ पहुंचाती है तो मोटी आंखों वाली हूरों में से उस आदमी की बीवी कहती है, अल्लाह ताला तुझे हलाक करे, इसे तकलीफ ना दे, ये चंद रोज के लिए तेरे पास है, अनकरीब तुझे छोड़कर हमारे पास आने वाला है। ये इब्न माजा की 2014 नंबर रिवायत है। फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो है जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने यहाँ नेक किरदार और खूबसूरत औरत की नेमत का तज़किरा किया है कि आखिर किस किस नेमत को झुटलाओगे। हुरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, गोरी स्याह आंखों वाली औरतें खैमों में रोकी हुई हैं। हूरों की खुसूसियात की वजाहत है। हूरें मोतियों के खैमों में छुपी हुई होंगी जिन्होंने अपने आप को शौहरों के लिए तैयार रखा होगा, और खैमों में मस्तूर होना उनके जन्नत के बागात में निकलने के मुनाफी नहीं, जैसा कि बापर्दा शहजादियों की आदत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में मोतियों के खैमे होंगे, उनका अर्ज 60 मील होगा, उसके हर कोने में जन्नती के घर वाले होंगे जिसको दूसरे कोने वाले नहीं देख सकेंगे, और मोमिन उसमें घूमेगा। सही मुस्लिम की रिवायत है। फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो है जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने गोरी रंगत की खैमों में ठहराई हुई हूर की नेमत का तज़किरा किया है कि तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, इनसे पहले किसी इंसान और किसी जिन ने उन्हें छुआ तक नहीं। हूरों के औसाफ हैं, अहले जन्नत को मिलने वाली हूरें कंवारी होंगी। और बात है लम यतमिसहुन्ना की कि उन्हें छुआ तक नहीं होगा। इससे मुराद हैज का खून भी है, और औरत का हैज वाला होना भी, और मर्द का औरत का पर्दे बकारत ज़ाइल करना भी। फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो है जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने यहाँ जन्नती औरत की नेमत की बात की है कि तुम किस किस नेमत को झुटलाओगे। मुत्तकिईना अला रफ़रफ़िन खुज़रिम व अबक़रिय्यिन हिसान, नादिरो नफीस खूबसूरत सब्ज कालीनों पर तकिया लगाए हुए होंगे। जन्नतियों के फर्श कैसे होंगे? रफ़रफ़िन गद्दे, मसनदें, जन्नत के बागात, सब्ज रंग के बेशबहा कालीनों
और मसनदों पर टेक लगाकर आराम से बैठे या लेटे होंगे। ये वो जगह जो बुलंद जगहों के नीचे होंगी। उनके बैठने की जगह के पीछे खूबसूरत पर्दे लटक रहे होंगे। वह अबकरिय्यिन हिसान, नादिरो नफीस खूबसूरत गालीचा कालीन, मुनक्कश रेशम। अबकरी हर उस बुने हुए कपड़े को कहते हैं जिसे खूबसूरत तरीके से बुना गया, उसके लम्स में मलायमत हो और देखने में वर्ता हैरत में गुम कर देने वाला। वह अबकरियन। अरब के दौरे जाहिलियत के इंसानों में जिन्नों के दारुस सल्तनत का नाम अबकर था, जहाँ सिर्फ जिन और परियां ही रहते थे, जिसे हम उर्दू में परिस्तान भी कहते हैं, यानी परियों के रहने की जगह। फिर अबरी के लफ्ज का इत्तलाक हर नफीस और नादिर चीज पे होने लगा, तो ये परिस्तान की चीज है जिसका मुकाबला दुनिया की आम चीजें नहीं कर सकती। फिर ऐसे आदमी पर भी इसका इत्तलाक होने लगा जो गैर मामूली सलाहियतों का मालिक हो। इसीलिए अहले अरब को जन्नत के सरो सामान की गैर मामूली नफासत और खूबी का तसव्वुर दिलाने के लिए यहाँ अबकरी का लफ्ज आया है। हर नफीस और आला चीज को अबकरी कहते हैं। रसूलुल्लाह ने सईदना उमर के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल किया था। आपने फरमाया, मैंने ऐसा कोई अबकरी नहीं देखा जो उमर की तरह काम करता हो। सही बुखारी की रिवायत है। फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो है जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। रब्बुल इज्जत ने यहाँ जन्नतियों के फर्श की बात की है कि आखिर किस किस नेमत को झुटलाओगे। तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। आपके रब का नाम बड़ा ही बाबरकत, जो बड़ी शान वाला और बड़ी इज्जत वाला है। यानी अल्लाह ताला की मुकद्दस जात का बाबरकत नाम अर्रहमान, अल्लमल कुरआन, खलकल इंसान, अल्लमहुल बयान। और यहाँ फरमाया जिल जलाली वल इकराम, जो बड़ी शान वाला बड़ी इज्जत वाला है, अपने औलिया के लिए इकराम करने वाला और अपने बंदों पर एहसान करने वाला है। सईदा साहबान बयान करते थे कि रसूलुल्लाह जब भी नमाज से सलाम फेरते तो पहले 3 बार इस्तिगफार पढ़ते, फिर ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह तू ही सलामती वाला, तुझी से सलामती है। ए बुजुर्गी और इज्जत वाले, तू बड़ी बरकत वाला है। सही मुस्लिम की 1334 नंबर रिवायत। तो अल्लाह ताला बड़ी बुजुर्गी और इज्जत वाला है, इज्जत अता करने वाला है, लुत्फ और एहसान करने वाला है। उसका नाम बाबरकत है, तो उसकी जात कितनी बाबरकत होगी। या अरहमर रहीमीन।